Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I welcome you all in lecture number 26 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM 705. Let's have a revision of what we studied in our last lecture. Students, our last lecture comprised of following topics. The first thing which we discussed in detail was applying the relationships. हमने देखा कि किस तरह से हम लोग relationships को apply करेंगे and how the default finish to start relationship is applied to the activities. And then the next thing included in our last topic was automatic scheduling. We discussed that as we saw in Microsoft Project that the default mode was manual scheduling, and then we clicked auto button to get into the automatic scheduling. And when we get to automatic scheduling, then the dates were calculated by the system. Similarly, in Primavera we saw that even when we entered the activities and their durations and we applied the normal relationship, the default relationship that was finished to start, the activities were not in the waterfall model. They were not looking into the waterfall model. So what we did was that we just went to the scheduling options and we checked the automatic scheduling option in that, and once that was selected, we pressed the schedule button. We saw that the activities got into that same waterfall model which was desired, and the activities color was transformed to red. Now what was the purpose of this red color? The purpose of this red color was to show the activities are on critical path, and these are critical activities. And why all activities were on critical path? Because the whole project, the whole activities of the project were connected in a finish to start manner, in a default manner. So what happened was, in fact, we were having only one path on our network diagram. So by having the one path on the network diagram, it was understood that all activities on that path will be the critical activities, and that's why they were shown in the red color. Students, after that जो चीज़ हमने डिस्कस की, that was कि हम लोगों ने जो कैलेंडर पहले एक एक्टिविटी को पे अप्लाई किया हुआ था, वो कैलेंडर हम तमाम एक्टिविटीज़ जो बाकी रिमेनिंग एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट की, उन पे कैसे अप्लाई करेंगे, उन पे किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं. सो उसको अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने वो सेल पहली एक्टिविटी का जिसमें कैलेंडर असाइन था उसे कॉपी किया और तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को शिफ्ट डाउन एरो के साथ सेलेक्ट करवा लिया. सेलेक्ट करने के बाद हम लोग एडिट में गए और फिल डाउन का ऑप्शन था हमारे पास. हम लोगों ने फिल डाउन के ऑप्शन को क्लिक किया और जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास तो वो जो ऑप्शन था, वो जो कैलेंडर था, वो तमाम एक्टिविटीज़ पे अप्लाई हो गया. स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा कि हम लोगों ने एक कैलेंडर को मल्टीपल एक्टिविटीज़ पे अप्लाई कर लिया. एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से हम लोग अपने प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है वो टोटल ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं. उसके लिए हम लोगों ने हम व्यू में गए और ग्रुप एंड सॉर्ट का एक ऑप्शन था हमारे पास. ग्रुप एंड सॉर्ट के ऑप्शन पे जब क्लिक किया हमने तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया जो कि हमसे पूछ रहा था कि यार मैं किस चीज़ के हिसाब पे ग्रुपिंग करूं. तो हम लोगों ने ग्रुपिंग की प्रोजेक्ट बेस्ड. हम लोगों ने एक सेल में प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया और हमने कहा कि इस तरह से ग्रुपिंग करूं. सो ये करके जब हमने उसको सेलेक्ट किया तो हमारा जितनी एक्टिविटीज़ थी दे वर ग्रुप्ड अंडर दैट प्रोजेक्ट नेम और उसका टोटल ड्यूरेशन भी हमें लिखा हुआ नज़र आना शुरू हो गया. So students, once done with this thing, the next topic which we discussed was the project export. कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट को अगर सेव करना चाहें, अगर अपने प्रोजेक्ट को कहीं और लेके जाना चाहें, अगर उसे ट्रांसपोर्ट करना चाहें तो किस तरीके से हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे. सो उसके लिए हमने क्या किया कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट किया. हम लोग प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में गए और प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट पे हम लोगों ने सबसे पहले सेलेक्ट किया कि किस टाइप की फ़ाइल होगी. हमने कहा .xcr फाइल होगी. .xcr फाइल के बाद हमने एक जगह पर उसको ये बताया कि यार हमने प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना है, रोल एक्सपोर्ट करने हैं या रिसोर्सेज. हमने कहा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना है. देन नेक्स्ट हमने उसको बताया कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना है. जब हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा एक्सपोर्ट करना है,
देन उसको हमने बताया कि ये जो एक्सपोर्टेड प्रोजेक्ट होगा इसकी फाइल कहाँ क्रिएट होगी, इसकी फाइल किस जगह जाके सेव होगी। सो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इसको ये बात बताई, पाथ बताया और फिनिश कर दिया। तो हमने फिनिश किया तो हमने देखा कि इसने हमें एक मैसेज बॉक्स शो किया कि ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली उसका बैकअप ले लिया गया, उसको सेव कर लिया गया, उसको एक्सपोर्ट कर लिया गया, उसकी एक्सपोर्ट फाइल क्रिएट कर ली गई। आफ्टर दैट स्टूडेंट जो नेक्स्ट चीज़ थी वो ये थी कि हम लोग प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट कैसे करें। सो हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने फाइल में गए, इंपोर्ट का ऑप्शन क्लिक किया और इंपोर्ट के ऑप्शन में पहला स्टेप ये था कि कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है। सो हमने उसे कहा कि .xcr फाइल इंपोर्ट करनी है, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट भी .xcr में किया था। नेक्स्ट उसने पूछा कि किस लोकेशन से, तो हमने बताया कि इस लोकेशन से। फिर उसने पूछा कि ये जो आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं इसका मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूं या मैं एग्जिस्टिंग को अपडेट करूं या क्या करूं। इन केस एग्जिस्टिंग अपडेट में उसने हमसे पूछा कि किस प्रोजेक्ट में अपडेट करूं, और जब हमने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कहा तो उसने कहा कि ठीक है इसका ईपीएस कौन सा होगा। वंस हमने उसको ईपीएस बता दिया तो उसने क्या किया कि उसने उस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लिया उस स्पेसिफिक ईपीएस के अंदर। सो स्टूडेंट्स दिस वाज हाउ हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट किया, देन इंपोर्ट करके देखा। नाउ स्टूडेंट्स कमिंग अप टू टुडेज आउटलाइन कि हम लोग आज के लेक्चर में क्या देखेंगे। स्टूडेंट्स आज हम लोग बातचीत करेंगे एक तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं और टू टॉपिक्स। वन के अगर हमने रिलेशनशिप को मॉडिफाई करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। फिनिश टू स्टार्ट को स्टार्ट टू स्टार्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। एंड देन जो नेक्स्ट चीज़ देखेंगे दैट विल बी फाइंडिंग फ्री स्लैक, कि हमारा जो स्लैक है, जो फ्री स्लैक है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने देखनी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे दे विल बी फ्रॉम कस्टमाइजिंग एंड फॉर्मेटिंग। कस्टमाइजिंग और फॉर्मेटिंग जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में हमने देखा था, यहाँ पे भी हमारे पास कस्टमाइजिंग और फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस नजर आना शुरू हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है इसमें कस्टमाइजिंग और फॉर्मेटिंग में हमारे पास डेट फॉर्मेटिंग का हम लोग देखेंगे आज कि डेट को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है। देन हम लोग बार फॉर्मेटिंग की बात करेंगे कि बार्स को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है, बार के कलर्स कैसे चेंज किए जा सकते हैं। देन हम लोग ये देखेंगे कि बार के करीब अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन शो करना चाह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से नज़र आएगी। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट जो चीज़ हम लोग देखेंगे दैट विल बी बार लेजेंड, कि जो बार्स का लेजेंड है उससे किस तरह से प्ले किया जा सकता है, उसको किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स उसके बाद जो चीज़ है नेक्स्ट दैट इज़ कस्टमाइजिंग डिटेल्ड लेआउट, ठीक है। जो आपका नीचे जो डिटेल्ड लेआउट आ रहा है बॉटम लेआउट में उसकी कस्टमाइजेशन किस तरह से की जाएगी, ठीक हो गया। एंड देन चेंजिंग रो हाइट, जो रो की एक हाइट है उसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, एंड बैकग्राउंड कलर कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। सो दीज आर द टॉपिक्स जो कि आज के उसमें इन्वॉल्व है। और इफ़ वी आर लेफ्ट विद द टाइम तो हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे प्रोग्रेस स्पॉटलाइट के ऊपर, हम लोग कर्टन्स पे थोड़ी बातचीत कर लेंगे। सो हम देखेंगे कि थिंग्स किस तरह से जो है चीज़ें हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। और टुडेज़ लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि इस बात को आप लाइफ में मद्देनज़र रखिए कि रिलेशनशिप्स जो हैं दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आप इस तरह कंसिडर कर लीजिए कि आपका जो काम है ये और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं दे आर बोथ बॉल्स इन योर हैंड, ठीक है। आपके हाथ में बॉल्स पकड़ी हुई हैं। जो आपका वर्क है दैट इज़ रबर बॉल, ठीक है। उसको वो जब भी गिरेगा इट विल बाउंस बैक, इट विल टेक टाइम बट इट विल बाउंस बैक, ये वापस बाउंस बैक कर जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा। सो नेचुरल फिनोमेना। लेकिन रिलेशनशिप इज़ अ ग्लास बॉल। अगर रिलेशनशिप को आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, रिलेशनशिप पे अगर आप तवज्जो नहीं देंगे देन इट विल फॉल, इधर इट विल ब्रेक अप या इस पे स्क्रैच ज़रूर रह जाएगा जो कि लाइफ टाइम के लिए होगा, जिसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। सो स्टूडेंट्स
इस बात को मद्देनजर रखिए कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना है और अपनी लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको वैल्यू करना है। इस बात के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि पहला टॉपिक हमारे पास क्या है। द फर्स्ट टॉपिक इन आवर लेक्चर इज हाउ टू एडिट रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स को किस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा, और ये उस तरह का रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही। दिस इज़ नॉट अबाउट योर फैमिली। ये बात जो हो रही है ये फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट, जो एक्टिविटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप है उसकी मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। तो रिलेशनशिप को एडिट किस तरह से, जो हमारे फैमिली के रिलेशनशिप्स हैं उनको तो हम एडिट ही नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एडिट दैम, ठीक है, उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है। सो एडिट का ऑप्शन सिर्फ आपको प्राइमेवेरा दे रहा है या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट दे रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ प्राइमेवेरा एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। सो लेट्स सी हाउ यू कैन एडिट रिलेशनशिप्स फॉर योर प्रोजेक्ट। आप कैसे कर सकते हैं, देखिए, अगर आप किसी एक्टिविटी को क्लिक कीजिए, कोई एक्टिविटी अगर आप सिलेक्ट करें, जिस तरह से मेरे पास ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी जब मैं सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास नीचे एक प्रीडिसेसर का टैब आ रहा है। अगर प्रीडिसेसर का टैब नहीं होगा तो रिलेशनशिप्स का टैब हो जाएगा। इट मे बी प्रीडिसेसर या रिलेशनशिप्स। प्रीडिसेसर का टैब हो सकता है या रिलेशनशिप्स का टैब हो सकता है। सो प्रीडिसेसर या रिलेशनशिप्स का जो टैब है, इस पे जब आप जाते हैं तो अगर आप इसमें देखिए तो इसमें पहले तो एक तो इसमें टेबल नजर आ रहा है आपको, ठीक हो गया। सो जो एक्टिविटी इसका प्रीडिसेसर होगी, किसका, इस एक्टिविटी का जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जिस एक्टिविटी को आपने सेलेक्ट किया है, जो आपकी सेलेक्टेड एक्टिविटी है, जो आपकी ये वाली एक्टिविटी है जिसको हमने यहां पे शो किया था आपको, ये एक्टिविटी जो सिलेक्टेड एक्टिविटी है, इसका जो भी प्रीडिसेसर होगा वो यहां पे आ रहा होगा, ठीक हो गया। यहां पे आ रहा होगा ऑल प्रीडिसेसर्स ऑफ सेलेक्टेड एक्टिविटी। सेलेक्टेड एक्टिविटी के तमाम प्रीडिसेसर्स आपको यहां नजर आ रहे होंगे, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे जो रिलेशनशिप जो नज़र आ रहा है आपको ऑलरेडी, अगर कोई है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपके पास रिमूव का बटन मौजूद है। यहाँ पे आप जस्ट इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद रिमूव का बटन दबा दें, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कोई नहीं कर रहा या आप एक और रिलेशनशिप लगाना चाह रहे हैं तो आपके पास असाइन का बटन मौजूद है। ये देखिए कि अब आप एक नया रिलेशनशिप या नया प्रीडिसेसर असाइन करना चाह रहे हैं। सो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को अगर आप गौर से देखिए तो इसमें लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज आ रही होगी। क्या आ रहा होगा, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, या इसको आप लिस्ट ऑफ पॉसिबल प्रीडिसेसर्स भी कह सकते हैं आप इसको, लिस्ट ऑफ पॉसिबल प्रीडिसेसर्स। तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ पॉसिबल प्रीडिसेसर्स, बिकॉज इस एक्टिविटी अपना नाम नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये इसका प्रीडिसेसर नहीं बन सकता। सो बाकी सारे नाम यहाँ पे नजर आ रहे होंगे आपको, या फिल्टर होंगे या नहीं होंगे, आपने देखना है इसको। जैसे ही आपने इसको यहाँ पे जो एक्टिविटी आप रिलेशनशिप लगाना चाह रहे हैं उसको डबल क्लिक कीजिए, वो एक्टिविटी इस डायलॉग से निकल के इस जगह मूव कर जाएगी। इसका मतलब है कि अब वो एक्टिविटी उसका प्रीडिसेसर बन चुकी है। सो आपने अगर उसके 4 प्रीडिसेसर रखने हैं तो आप असाइन पे जाइए, 4 एक्टिविटीज को यहाँ से क्लिक कीजिए, वो 4 की 4 एक्टिविटीज जो है वो इस एरिया में मूव कर जाएंगी और वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली लग जाएगा। सो दिस इज हाउ योर रिलेशनशिप्स वर्क। इस तरह से रिलेशनशिप काम करते हैं। और इस चीज़ को जब भी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो जाके देख भी लेंगे। सो आपको याद है कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर का कॉन्सेप्ट क्या है। जिस तरह से अगर सपोज कीजिए आपकी एक्टिविटी है, अगर आपकी एक्टिविटी है ये, और एक एक्टिविटी ये है, और एक एक्टिविटी ये है, दिस इज ए, दिस इज बी,
दिस इज सी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का प्रीडिसेसर कौन है तो आप क्या कहेंगे? ए। बी का प्रीडिसेसर ए है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का सक्सेसर कौन है तो आप कहेंगे सी। ठीक है, बी का प्रीडिसेसर ए हो गया और बी का सक्सेसर सी हो गया। और अगर मैं आपसे कहूं कि सी का प्रीडिसेसर कौन सा है तो आप कहेंगे बी। तो इस तरह से सक्सेसर्स भी सेट कर सकते हैं आप। और सक्सेसर्स के लिए अगर आप सेट करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे एक डिफरेंट प्रॉपर टैब दिया गया है, उसमें जाके आप सक्सेसर्स देख भी सकते हैं और आप सक्सेसर्स को सेट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। और ये देखिए कि अब उसने कहा कि आप ये जो आपके जो रिलेशनशिप्स, आपका जो टेबल है उस पे ये तमाम रिलेशनशिप्स अप्लाई कर दें। सो ये रिलेशनशिप्स जो हैं हम लोग अभी थोड़ी देर में अप्लाई करके देख लेते हैं, सो दैट कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग इज फाइंड टोटल फ्लोट और फ्री स्लैक। आपने टोटल फ्लोट या फ्री स्लैक फाइंड आउट करना है। हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में जो वर्ड यूज़ किया था दैट वाज स्लैक, वहाँ पे हमने स्लैक यूज़ किया था। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होता है प्राइमरा में मोस्टली इट इज़ फ्लोट। सो बोथ थिंग्स आर वेरी सेम। ये दोनों चीज़ें जो हैं दे आर वेरी सेम, दे आर इंटरचेंजेबल। ये दोनों चीज़ें इंटरचेंजेबल हैं, ये दोनों चीज़ें सेम सेम है आप कह लीजिए। ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, फ्लोट और स्लैक जो है वो आपके सामने है और फ्लोट और स्लैक जो है वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वंस दिस थिंग इज डन, जब ये चीज़ हो चुकी, नाउ स्टूडेंट्स क्या है अब देखिए कि ये जो आपको याद है स्लैक क्या चीज़ थी? थोड़ा सा मुझे बताइए कि स्लैक क्या था? द क्वेश्चन ऑफ टाइम फॉर विच यू कैन डिले एन एक्टिविटी and the early start of next activity is not disturbed, you call it as slack. Or you can say the question of time which you have got in an activity that you delay it for that duration and the deadline of project is not affected. It is called free slack or total float. इसे total float कहते हैं। ठीक है। सो आपको याद होगा जब हमने प्रोजेक्ट डिस्कस किया था शुरू में और उसमें हमने बात की थी कि यार इसमें जो है हम लोग किस तरह से हम लोग जो है स्लैक को यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो स्लैक था, वो जो फ्लोट था, वो जो बात हमने की थी, अगर मैं उसको थोड़ा सा आपको रिपीट करवा दूं तो ये देखिए आपके पास ये एक्टिविटी है और एक ये एक्टिविटी है और एक एक्टिविटी ये है। दिस इज एक्टिविटी ए, this is activity B and this is activity C. So activity A और activity B ये दोनों जो खत्म होंगी तब एक्टिविटी C स्टार्ट होगी। ठीक है। नाउ एक्टिविटी A के पास ये देखिए आप, ये ड्यूरेशन है ना जिसमें ये इसको थोड़ा लेट या अर्ली कर सकते हैं। सो इसमें हमारे पास स्लैक मौजूद है। ठीक हो गया। सो हमने एक और बात डिस्कस की थी कि तमाम क्रिटिकल एक्टिविटीज, ऑल क्रिटिकल एक्टिविटीज विच लाई ऑन द क्रिटिकल पाथ हैव गॉट स्लैक जीरो। उनका स्लैक जीरो होता है। ठीक है। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट ऑन क्रिटिकल पाथ दे हैव गॉट अ स्लैक। ठीक है। और फ्लोट, यहाँ पे हम बात इसको फ्लोट कहेंगे। ठीक है। सो फ्लोट किस तरह से टोटल फ्लोट फाइंड आउट करेंगे? टोटल फ्लोट फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप एक कॉलम इंसर्ट करें और वो उस कॉलम में आप क्या करें, आप टोटल फ्लोट का कॉलम फाइंड आउट करें। ठीक है। टोटल फ्लोट का कॉलम फाइंड आउट करें और आप देखें कि ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे स्मॉल एरो, मैंने बताया था स्पेशल ऑप्शन के लिए। और जैसे ही आप जो करेंगे तो ये आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स शो कर देगा। इस डायलॉग बॉक्स पे आप फ्लोट लिख दीजिए और क्लिक कर दीजिए फाइंड नेक्स्ट। जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन को आप इस तरफ मूव कर दीजिए। ठीक है। तो आपके पास टोटल फ्लोट का एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया।
सो ये चीज़ आपने देख ली, और उसमें हमें एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की तरह जब आपका वो कॉलम ऐड हो जाएगा, हम देख लेंगे कि जिनका फ्लोट 0 होगा वो क्रिटिकल होंगी, और जिनका फ्लोट 0 नहीं होगा वो क्रिटिकल नहीं होंगी, ठीक है। सो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो चीज़ है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंसर्ट एन एक्टिविटी समवेयर बिटवीन एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर आप दो एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ के दरमियान एक्टिविटी इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमने देखा था कि क्या करेंगे। ये देखिए, एक्टिविटीज आईडी से चल रही है, वो आपको पहली आईडी देता है, देन वो आपको एक गैप देता है, देन वो आपको 10 का गैप देता है, 10 के गैप से वो आपको आईडी क्रिएट करवाता है, ठीक है। सो अगर आप, ये आपकी एक्टिविटी आईडीज हैं, ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी आईडीज हैं। ना आपके पास एक्टिविटी आईडीज जब आ गई तो एक्टिविटी आईडीज के अंदर आप देखिए कि आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार कि मुझे इन दो एक्टिविटीज के दरमियान एक्टिविटी इंसर्ट करनी थी, ठीक है। तो इनके दरमियान में एक्टिविटीज कौन कौन सी आ सकती हैं। 1 आप नंबर दे दें उसको, 2 दे दें, 3 दे दें, अप टिल 9 तक का नंबर आप लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में कौन सी एक्टिविटीज आ सकती, इनके बीच में ये एक्टिविटीज इंसर्ट की जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सी है, देन आप अगेन 1 दे दीजिए, टी 11 हो जाएगा, एंड 12, 13 एंड टिल 19 ये एक्टिविटीज आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो जब भी आपने कोई एक्टिविटीज दो एक्टिविटी के बीच में इंसर्ट करनी हो तो आप सपोज कीजिए कि एक एक्टिविटी है A1000, ठीक है, और एक है A1010। आपने बीच में एक्टिविटी इंसर्ट करनी है तो वो एक्टिविटी शुड बी ग्रेटर देन, इसका आईडी जो है वो ग्रेटर देन दिस होना चाहिए बट लेस देन दिस होना चाहिए। ये फार्मूला आप याद रख लीजिए कि नई आईडी जो इन दोनों बीच में इंसर्ट आप करने जा रहे हैं उसका आईडी जो आप देंगे वो ग्रेटर देन प्रीवियस होना चाहिए, और जिस लिमिट के जिन दो के बीच में करना चाह रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए, ठीक हो गया। सो ये रिलेशनशिप आप जब बनेगा तो आपकी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। सो ये आपको क्या कह रहा है कि ऐड एक्टिविटी, सबसे पहले एक्टिविटी ऐड पे जाएं, जो आपने प्लस का साइन देखा था विच वॉज लाइक दिस, आपको याद होगा कमांड, उसमें जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी एक्टिविटी ऐड करेगा। आईडी को चेंज कर दीजिए, ठीक है, ये आईडी जो आपने यहाँ डिसाइड की है वो आईडी आप यहाँ पे इंसर्ट कर दें, ठीक हो गया। एंड देन अपडेट रिलेशनशिप, फिर आप ये करें कि आप रिलेशनशिप को अपडेट कर दें, ठीक हो गया। आप रिलेशनशिप अपडेट कर लें, मतलब उसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर उसका चेंज कर दें, ठीक है। तो आपकी एक्टिविटी जो है ऑटोमेटिकली उनके बीच में इंसर्ट हो जाएगी। ये भी अभी हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग इन सब जो कुछ भी पढ़ा इनको ज़रा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से होती हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे हम लोग थोड़ी देर के लिए ज़रा प्रैक्टिस करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा काम जो है इस प्रोजेक्ट पे हो रहा है। स्टूडेंट्स, सबसे जो पहली चीज़ हमने देखी, हमने कहा था कि हम लोग जो सबसे पहला काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम रिलेशनशिप्स मॉडिफाई करते हैं, ठीक हो गया। सो रिलेशनशिप मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या किया था, हमने कहा था यार कि बॉटम लेआउट में हमारे पास प्रीडिसेसर का या रिलेशनशिप्स का एक टैब आ रहा होगा। ये देखिए मेरे पास रिलेशनशिप का टैब आ रहा है, ठीक है जी। प्रीडिसेसर का टैब भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं अगर सपोज कीजिए कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस का कोई रिलेशनशिप चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ उसका प्रीडिसेसर चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको रिमूव करूँगा, आप इस एरिया को ज़रा आप गौर कीजिएगा, मैं इसको रिमूव करूँ अगर, तो ये देखिए आर यू श्योर कन्फर्मेशन लेगा, जैसे मैं रिमूव करूँगा वो रिलेशनशिप रिमूव हो जाएगा। अब ये देखिए कि यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, ये इस पाथ क्रिटिकल पाथ पे नहीं है इसलिए ग्रीन हो गया। दोबारा असाइन करना चाहूँ, असाइन पे आ जाऊँगा, असाइन में मुझे तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं,
जो एक्टिविटीज़ मेरे पास मौजूद हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं। मैं इसमें जिस एक्टिविटी को डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये एक्टिविटी यहाँ पे इंसर्ट हो गई प्रीडिसेसर में, और मैं इसको क्लोज कर दूँ तो देखिए दोबारा से रिलेशनशिप उस तरह ही हो गया, और अब इसने ऑटोमेटिकली अपने आप को शेप अप कर लिया। क्यों ऑटोमेटिकली शेप अप किया? बिकॉज हम लोगों ने जो चीज़ देखी थी कि ऑटोमेटिक स्केजुलिंग सेट की हमने, और वो ऑटोमेटिक स्केजुलिंग इफेक्ट ये हुआ कि अब इसने खुद ब खुद अपने आप को चेंज करना और सेट करना शुरू कर दिया है। ठीक हो गया? तो दिस इज हाउ आप रिलेशनशिप मॉडिफाई करते हैं। लेट्स सी, हम थोड़े से रिलेशनशिप्स को मॉडिफाई करके देख लेते हैं कि यार हमने किस तरीके से काम करना है। ठीक हो गया? इसके साथ साथ हम पहले इसको करने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ इंसर्ट कर लेते हैं बीच में। मैं ये कहता हूँ कि यार रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है, इसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद डेटाबेस डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मैं इससे पहले ये कहता हूँ कि यार यहाँ पे मेरी एक्टिविटी होनी चाहिए डेवलपमेंट से पहले फ्रेमवर्क सिलेक्शन की। ठीक है, डेवलपमेंट से पहले फ्रेमवर्क सिलेक्शन की, और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बाद ये देखिए 1030 से बड़ा आईडी देना है मुझे, और 1040 से छोटा आईडी देना है। सो मैं एक एक्टिविटी इंसर्ट करता हूँ, 1030 से बड़ा और 1040 से छोटा। सो मैं क्या करता हूँ, 1031 1040 से छोटा है और 1030 से बड़ा है। सो मैंने ये किया और मैं यहाँ लिख दिया फ्रेमवर्क सिलेक्शन। सो मैं कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करने से पहले मेरे पास फ्रेमवर्क सिलेक्टेड होना चाहिए। सो मैंने इसको किया और मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर देता हूँ। अब आप देखिए तो यहाँ पे मेरे पास एक एक्टिविटी बीच में इंसर्ट हो गई फ्रेमवर्क सिलेक्शन की। दो के बीच का कोई रिलेशनशिप नहीं लगा हुआ, लेकिन चले पहले मैं एक्टिविटीज इंसर्ट कर लेता हूँ, देन हम उसको आराम से इस पे रिलेशनशिप अप्लाई करके देख लेंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए कि डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग से पहले मैं कहता हूँ यार कि टेस्ट केस डेवलप होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए मैंने टेस्ट कैसे करना है, टेस्टिंग का एक तरीका कार बना होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक और एक्टिविटी इंसर्ट कराता हूँ जो कि डेवलपमेंट और टेस्टिंग के बीच में हो, और उस एक्टिविटी का जो नंबर क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट का है 1040 और टेस्टिंग का है 1050। 1040 और 50 के बीच में होना चाहिए, तो मैं इसको 1041 कर देता हूँ। ठीक हो गया? और 1041 करके मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इसका जो नेम है मैं कहता हूँ टेस्ट केस डेवलपमेंट। टेस्ट केस डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे किया और फिनिश कर दिया। अब देखिए कि ये दो एक्टिविटीज अपनी प्रॉपर जगह पे इंसर्ट हो गई, लेकिन इनका भी रिलेशनशिप नहीं लगा। अब मैं रिलेशनशिप थोड़े मॉडिफाई करता हूँ। ये देखिए मैं कहता हूँ यार कि जो मेरा डेटाबेस डिज़ाइन है और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है और फ्रेमवर्क सिलेक्शन है, ठीक है, फ्रेमवर्क सिलेक्शन पे का ड्यूरेशन में थोड़ा सेट कर देता हूँ कि यार ये तो लेगा 3 दिन। ठीक हो गया? और टेस्ट केस डेवलपमेंट जो है ये लेगा 10 दिन। ओके, ठीक हो गया? सो ये चीज़ें मैंने कर ली। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब मेरा प्रोजेक्ट को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं रिलेशनशिप को मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को समझिए गौर से। मैं सोच कैसे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार कि ठीक है कि मैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करूँगा, जैसे ही रिक्वायरमेंट गैदरिंग खत्म होगा तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लूँगा। ठीक हो गया? जैसे ही रिक्वायरमेंट एनालिसिस खत्म होगा तो डेटाबेस डिज़ाइन कर लूँगा, और जैसे ही डेटाबेस डिज़ाइन खत्म होगा, नहीं, यहाँ पे मैं कहता हूँ गड़बड़ है। यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद डेटाबेस डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और फ्रेमवर्क सिलेक्शन, डेटाबेस डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैरेलल में परफॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, पैरेलल परफॉर्म करने का मकसद ये है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस जैसे ही हो तो ये दोनों एक्टिविटीज साथ ही स्टार्ट हो जाए। सो डेटाबेस डिज़ाइन का प्रीडिसेसर क्या होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है यहाँ पे। ये देखिए इस जगह पे ज़रा गौर से देखिए कि डेटाबेस डिज़ाइन का प्रीडिसेसर रिक्वायरमेंट एनालिसिस है ना। इसी तरह सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का भी जो प्रीडिसेसर है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होना चाहिए बजाय इसके कि डेटाबेस डिज़ाइन हो। सो मैं इसको रिमूव किया और असाइन कर दिया रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक हो गया? ये देखिए अब ये दो एक्टिविटीज़ यहाँ पे पैरेलल में होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद फ्रेमवर्क सिलेक्शन कब होगा, फ्रेमवर्क सिलेक्शन जो है जब डेटाबेस डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन दोनों हो चुके हों।
जब फ्रेमवर्क सिलेक्शन और डेटाबेस डिज़ाइन दोनों हो चुके हों तब मेरा ये काम होगा। सो दोनों के होने के लिए क्या ज़रूरी है कि इसके प्रीडिसेसर में वो दोनों चीज़ें हों। इसका प्रीडिसेसर मैं देखूं, अभी कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि फ्रेमवर्क सिलेक्शन तब होगा जब एक डेटाबेस डिज़ाइन हो चुका हो और एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो चुका हो। ओके, ये देखिए अब फ्रेमवर्क सिलेक्शन यहाँ से निकला और इस जगह पे आ गया, ठीक है। ओके जी, फ्रेमवर्क सिलेक्शन हो गया। और डेवलपमेंट कब होगा? जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो जाए। नहीं, बीच में एक्टिविटी इंसर्ट हो गई फ्रेमवर्क सिलेक्शन की। सो रिलेशनशिप क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। हम यहाँ आए, नहीं यहाँ से इसको रिमूव किया और हमने साइन क्या करवा दिया? फ्रेमवर्क सिलेक्शन। फ्रेमवर्क सिलेक्शन कब होगा? जब पिछले दोनों काम हो जाएंगे। यहाँ पे हमने फ्रेमवर्क सिलेक्शन को डबल क्लिक कर दिया, तो अब आप देखिए रिलेशनशिप तो किस तरह से मॉडिफाई हो गया कि फ्रेमवर्क सिलेक्शन पहले यहाँ नजर आ रहा था, अब आपको ये मेन स्ट्रीम में नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट केस डेवलपमेंट कब होगी जी? टेस्ट केस डेवलपमेंट जो है वो तो उसका भी कोई रिलेशनशिप नहीं लगा हुआ, लेकिन हम कहते हैं कि जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो साथ ही टेस्ट केस डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाए, ताकि पैरेलल में ये काम भी हो जाए। ओके, हम लोग क्या करते हैं कि हम इसका प्रीडिसेसर क्या कर लेते हैं, वो कर लेते हैं जो कि डेवलपमेंट का प्रीडिसेसर है। ये देखिए डेवलपमेंट का प्रीडिसेसर कौन है? फ्रेमवर्क सिलेक्शन। टेस्ट केस का भी फ्रेमवर्क सिलेक्शन ही रख लेते हैं, ठीक है। मैंने साइन किया और फ्रेमवर्क सिलेक्शन को डबल क्लिक कर दिया। ये देखिए अब मेरा फ्रेम जो टेस्ट केस डेवलपमेंट था वो यहाँ से उठा और यहाँ आ गया। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि मैं किस तरीके से चीज़ों को देख रहा हूँ। मैं प्रोजेक्ट, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक कि किस काम को किससे पहले होना चाहिए, कौन सा काम मैं कब स्टार्ट करवा सकता हूँ। सो यहाँ पे देखिए कि मुझे पता है कि डेवलपमेंट टीम को डेवलपमेंट कर रही होगी, तो टेस्ट केसेस वाली टीम जो है वो टेस्ट केस डेवलप कर ले, ठीक है। टेस्ट केसेस वाली टीम जो है वो टेस्ट केस डेवलप कर ले। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने टेस्ट केस डेवलपमेंट यहाँ डाल दिया। अब मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स कि मेरा जब ये देखिए टेस्ट केस डेवलपमेंट खत्म हो चुका जाएगा यहाँ पे, उस वक्त तक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो चुकी होगी, तो मैं यहाँ से टेस्टिंग भी स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। यहीं से टेस्टिंग स्टार्ट करवा देता हूँ। सो मैं ये करता हूँ कि मैं टेस्टिंग का जो प्रीडिसेसर है वो टेस्ट केस डेवलपमेंट रख लेता हूँ। ओके जी, असाइन टेस्ट केस डेवलपमेंट, ठीक हो गया, ये असाइन हो गया। और ये डेवलपमेंट है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव हो गया। ओके, सो ये काम हो गया मेरा। अब आप ये देखिए कि ये तो हो गया। अब इम्प्लीमेंटेशन कब होगी? जब चीज की टेस्टिंग हो चुकी हो और उसकी डेवलपमेंट भी हो चुकी हो, ठीक हो गया। अच्छा, टेस्टिंग के लिए टेस्ट केस डेवलप होना जरूरी है और सॉफ्टवेयर का डेवलप होना भी जरूरी है। सॉफ्टवेयर ही ना हो और टेस्ट केसेस पड़े हो तो क्या मैं उसकी टेस्टिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सो मैं कहता हूँ कि इसके प्रीडिसेसर में यार मुझे एक और चीज़ भी चाहिए, और वो चीज़ क्या है कि वो मेरे पास मेरा डेवलपमेंट का काम भी कंप्लीट हो चुका हो। ओके, अब देखिए कि मेरे टेस्ट केस डेवलप हो जाएंगे और जब डेवलपमेंट भी हो जाएगा तो मेरी टेस्टिंग स्टार्ट होगी, और टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन होगी, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद मेरी कॉस्ट क्लोजिंग होगी। सो अब क्या हुआ कि मैंने अपने प्रोजेक्ट को के रिलेशनशिप्स को थोड़ा मॉडिफाई करके, रिलेशनशिप्स लगा के मैंने क्या किया कि मैंने उसके प्रीडिसेसर और इन सारी चीज़ों को चेंज कर दिया, ठीक है। प्रीडिसेसर्स को और उसके रिलेशनशिप्स को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए कि अब मेरी सारी एक्टिविटीज़ रेड नहीं आ रही। इसका रीज़न क्या है? क्या बता सकते हैं आप मुझे इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अब मेरे नेटवर्क पाथ में, मेरे नेटवर्क डायग्राम में एक पाथ नहीं है, नाउ देयर आर मल्टीपल पाथ्स, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज जो रेड है दे आर ऑन क्रिटिकल पाथ, ये एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पे लाई कर रही है, इसलिए मैं कहा कि ये क्रिटिकल पाथ पे है। और जो ग्रीन एक्टिविटीज है दे आर नॉट ऑन क्रिटिकल पाथ, इसलिए वो क्रिटिकल नहीं है, ठीक हो गया। सो यहां तक आपको बात क्लियर होगी, ठीक है जी। यहां पे एक और चीज देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास कुछ एक्टिविटीज ग्रीन आ रही हैं, कुछ रेड आ रही हैं, कौन सी क्रिटिकल है कौन सी नहीं है। चले हम एक कॉलम इंसर्ट करते हैं, कौन सा? फ्लोट का। ओके जी, हम आगे
कॉलम्स में, ठीक है। देखिए कॉलम में आए और हम छोटा एरो जो डिटेल्स का एरो था यहाँ से जाके देखिए फाइंड को मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं फाइंड क्लिक करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार कि मुझे फ्लोट के कॉलम दिखा दो। फ्लोट का कॉलम में जैसे ही करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, देखिए फ्री फ्लोट मेरे पास आ गया। इसको क्लोज किया और फ्री फ्लोट को मैं इस एरो को क्लिक करते हुए इस साइड मूव करवा दूंगा और इसकी सॉर्टिंग मैं ओरिजिनल ड्यूरेशन के बाद ले आता हूँ, ठीक है जी। ये करके मैंने अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब आप देखिए फ्री फ्लोट का कॉलम मेरे पास इंसर्ट हो गया। स्टूडेंट्स इस फ्री फ्लोट के कॉलम को मैं क्या करूं, इस फ्री फ्लोट के कॉलम में आप देखिए कि सिर्फ इस एक्टिविटी का फ्री फ्लोट 16 है और ये ग्रीन है, और इसका 36 है और ये ग्रीन है। ओनली देखिए दोज एक्टिविटीज विच हैव गॉट सम फ्री फ्लोट they are in green color. The activities which are in green color are not critical. The activities which are in green color have got float which is not equal to 0. Relationship आप link up कर सक रहे हैं। So critical path पे जो activities होंगी हमेशा उनका जो slack है या float है वो 0 होगा, और जो activities critical path पे नहीं होंगी उनका float 0 नहीं होगा। एक बात, जिनका float 0 होगा वो क्रिटिकल पाथ कंप्राइज कर रही होंगी, ठीक हो गया। सो जो क्रिटिकल है, जो रेड है, इफ डिलेड बाय 1 डे मे डिले द प्रोजेक्ट बाय 1 डे, ठीक हो गया। सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने फ्री फ्लोट भी करके देख लिया, हमने एक्टिविटीज इंसर्ट भी करके देख ली, और हम लोगों ने रिलेशनशिप मॉडिफाई भी करके देख लिए। सो आई होप कि ये चीजें भी हमने की हैं, ये आपको काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी। लेट्स मूव अहेड और हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है दैट इज एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड कस्टमाइजेशन। अब लास्ट आपको याद होगा कि हमने कि जिस तरह से हम जो सीक्वेंस हम लोग MS प्रोजेक्ट में फॉलो कर रहे थे, प्राइमवेरा में भी हम लोग सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। सो हमारी कोशिश है कि हम चीज़ों को रिलेट करते चले जाएं, रिलेट करते चले जाएं, रिलेट करते चले जाएं, ठीक हो गया। सो द सेम टॉपिक वाज देयर एज वेल, वहाँ पे भी ये टॉपिक था और यहाँ पे भी ये टॉपिक मौजूद है, ठीक है। सो थोड़ी सी ज़रा क्रिटिकल बातें होंगी, थोड़ी ज़रा मुश्किल बातें होंगी। अब थोड़ी सी ज़रा इजी बातें करते हैं, थोड़ा सा ज़रा मूड को रिलैक्स करते हैं और देखते हैं कि एडिटिंग कस्टमाइजेशन में क्या होता है। स्टूडेंट्स जगह बड़ी हमारे पास क्रिटिकल होती है, और हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में भी कि हमें डेट फॉर्मेट चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि मेरे पास अगर इतना कॉलम है तो इसमें तो मैं लिख सकता हूँ 2 अक्टूबर 1986 लिख सकता हूँ मैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या मैं, मेरे पास इतना कॉलम हो, इसमें मैं कैसे लिखूंगा? इसमें लिखूंगा 2/10/88 ना। दोनों का जो डेट फॉर्मेट है इसका और इसका इज डिफरेंट, दोनों का डेट फॉर्मेट डिफरेंट है। सो इस चीज को चेंज करने के लिए, इस डेट फॉर्मेट को चेंज करने के लिए व्हाट यू डू इज, आप लोग एडिट पे जाते हैं और एडिट में यूजर प्रेफरेंसेस को क्लिक करते हैं, ठीक हो गया। यूजर प्रेफरेंसेस जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक टैब है पूरा डेट का, डेट का टैब मौजूद है। आपने डेट के टैब को क्लिक किया, जैसे ही आपने डेट के टैब को क्लिक किया तो आपके पास ये ऑप्शंस आ गई। जरा इसको देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, बड़ी मजेदार किस्म की। पहली चीज आपसे पूछ रहा है कि आप सीक्वेंस क्या चाहते हैं, मंथ डे ईयर आए, डे मंथ ईयर आए, या ईयर मंथ डे आए। सीक्वेंस क्या होना चाहिए? आपने कहा यार कि मुझे तो ये वाला सीक्वेंस चाहिए, ओके हो गया जी, ये सीक्वेंस कर देते हैं। नेक्स्ट चीज पूछ रहा है जो टाइम आए वो 12 आवर्स वाला है, 24 आवर्स वाला है, कौन सा वाला टाइम चाहिए? जो 12 आवर्स वाला है उसमें AM PM आएगा, जो 24 आवर्स है उसमें AM PM नहीं आएगा। कहते हैं मुझे ये वाला टाइम फॉर्मेट चाहिए। इजी है, पाकिस्तान के हिसाब से है, इजी है, ओके जी। उसके बाद क्या होना चाहिए? आप कहते हैं यार कि देन
मुझे जो है वो डोंट शो टाइम भी आप कर सकते हैं कि मुझे टाइम दिखाओ ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है कि शो मिनट्स शो करो, आप कहते हैं हाँ शो करो या नहीं करो। नीचे आपको ये देखिए आपका जो सैंपल बनता जा रहा है वो सैंपल आपको यहाँ दिखा रहा है, जो सैंपल बन रहा है वो सैंपल आपको यहाँ दिखा रहा है, और ये सैंपल में आप देखते जाएंगे किस तरह की चीज़ आपको चाहिए, किस तरह की नहीं चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, 4 डिजिट ईयर चाहिए आपको कि नहीं चाहिए, मतलब ये कि आपको 2013 चाहिए या ओनली 13 चाहिए। अगर आपको 2013 चाहिए तो आप इसको चेक कर दें, अगर आपको सिर्फ 13 चाहिए तो अनचेक कर दें, ठीक है। एंड देन मंथ नेम, आपका मंथ का नाम आ रहा हो या मंथ का डिजिट आ रहा हो, आया वो 10 आ रहा हो या अक्टूबर आ रहा हो, किस तरह से चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। देन लीडिंग जीरोज, लीडिंग जीरोज क्या होता है कि मैं कहूँ 1/1/2013, ना जनवरी 1 से पहले जो जीरो लगा हुआ है इस जीरो को और इस जीरो को लीडिंग जीरोज कहा जाता है। दे आर बोथ, दीज बोथ जीरोज आर इन फैक्ट द लीडिंग जीरोज, दे आर द लीडिंग जीरोज, ठीक है। तो कहते हैं आपको लीडिंग जीरोज चाहिए कि नहीं चाहिए। अब स्पेस कम है तो आप उसे कहेंगे यार मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड लीडिंग जीरोज। सो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके आप इसको अनचेक कर देंगे, ठीक हो गया। एंड देन वो देखिए पूछता है आपसे कि सेपरेटर कैसा होना चाहिए। आप कहते हैं यार सेपरेटर मुझे इस तरह से चाहिए या मुझे इस तरह से चाहिए या मुझे इस तरह से चाहिए, किस तरह का सेपरेटर चाहिए। आपके पास सेपरेटर्स अवेलेबल हैं, आप सेपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग। आप डेट टाइम की फॉर्मेटिंग, इट इज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। इनका वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इजी वे ऑफ फॉर्मेटिंग डेट्स। अभी हम लोग जब थोड़ी देर में प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो इस चीज़ को अप्लाई करके देखेंगे कैसे करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट थिंग इज, जिस तरह से हमने उस पर पढ़ा था कि अगर आप किसी बार का कलर या उसका फॉर्मेट चेंज करना चाहें, बॉस ने आपको कह दिया यार, आपने प्रिंट दिया, उसने कहा यार कि मुझे चीज़ें रिलेट करने में मसला आ रहा है, मुझे चीज़ों के कलर्स में मसला आ रहा है, मुझे जो बार्स हैं उसके कलर पसंद ही नहीं आ रहे, या मुझे बहुत कंजस्टेड लग रहा है, या मुझे बहुत लाइट प्रिंट आ रहा है, कुछ भी कह सकते हैं वो आपको। इन तमाम वजूहात पे आपको क्या करना पड़ेगा, आके आपको बार की फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। सो बार की फॉर्मेटिंग अगर आपने करनी है तो आप क्या करते हैं कि आप व्यू के मेन्यू में आते हैं एंड बार्स को क्लिक कर देते हैं। व्यू के मेन्यू में बार को जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स ये देखिए कि इस डायलॉग बॉक्स में आपको तमाम की तमाम बार्स नजर आ रही हैं, ठीक है। वेरी सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। जो बार आप यहां से सिलेक्ट करेंगे, जो बार आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे, उस बार की शुरू में कौन सी शेप लगानी है, बीच में बार का स्टाइल कैसा होगा, और एंड पे कौन सी शेप लगानी है, ठीक है। कलर, जो शुरू में शेप लगाएंगे उसका क्या होगा, जो एंड पे शेप लगाएंगे उसका क्या होगा, और जो बीच में बार है उसका कलर क्या होगा। एंड देन पैटर्न, शुरू वाले का क्या होगा, एंड वाले का क्या होगा, और बीच वाले का क्या होगा। एंड देन रो हाइट, कि ये जो दो रोज के दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है ये कितना उस वक्त होगा, मतलब उस बार की विड्थ कितनी होगी, इनफैक्ट वो कितनी चौड़ी बार होगी, ठीक हो गया। सो आप इन तमाम चीज़ों को जिस तरह से वेरी सिमिलर टू MSP ने जिस तरह से किया था वही यहाँ पे जब आप करते हैं तो आपकी बार का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, आपकी बार की जो लुक एंड फील है वो मॉडिफाई हो जाती है। वंस डन दिस थिंग तो आप क्या करेंगे, आप अप्लाई क्लिक करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ओके। सो आप चाहें आप ऐसी बार बना लीजिए, इसके स्टार्ट में आप लगा लीजिए एक डायमंड, इसके एंड पे लगा दीजिए एक डायमंड, ठीक है, और इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है वो इस तरह से कर दीजिए। सो यू कैन डू इट वेरी सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। थर्ड थिंग जो कि हम लोग देखते हैं कि वो क्या है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं या एक आध और चीज़ देख के,
कि आपने एक तो बार की फॉर्मेटिंग चेंज कर दी, बार के कलर्स चेंज कर दिए, बट बॉस डिमांड्स यू कि आप मुझे ज़रा इसके साथ, या मैनेजमेंट डिमांड्स यू कि आप अपनी जो ये बार है इसके साथ फलां टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, फलां चीज़ भी लिखी हुई है। तो आप क्या करते हैं कि आप व्यू में जाते हैं और बार सेम जगह पे, सेम डायलॉग बॉक्स, पहले आपने इसको क्लिक किया था बार स्टाइल्स को, इस दफ़ा आप क्या करते हैं कि आप बार लेबल्स को क्लिक करते हैं। सो यू हैव टू गो टू बार लेबल्स, आपको बार लेबल्स क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप बार लेबल क्लिक करते हैं तो आपके पास एक लोअर हाफ आ जाता है जहाँ पे आप वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपके पास ये देखिए एक आपके पोजीशन का मतलब है कि आपको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, बिटवीन क्या, ठीक है। और देन लेबल, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे लेबल क्या दिखाना है, ठीक है। डेट दिखानी है स्टार्ट की, फिनिश डेट दिखानी है, या व्हाट्सएवर, सो ऑन, चलता जाएगा। सो जैसे ही आप ये कर लेंगे तो बार के अगेंस्ट आपने फॉर्मेटिंग भी सेट कर ली। ये करने के बाद यू विल क्लिक अप्लाई एंड देन यू विल क्लिक ओके। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये चीज़ हो गई। इसके बाद जो चीज़ आती है शोइंग लेजेंड फॉर बार्स। बार्स का जो लेजेंड है वो अगर आपको शो करना पड़ता है तो वो आप कैसे शो करेंगे। लेजेंड का आपको अंदाज़ा है ना किस तरह से, कि किस बार के अगेंस्ट कौन सी बार किस तरह से शो हो रही है, या जिस तरह से ग्रीन कलर में कौन सी बार शो हो रही है। तो आप देखते हैं हाँ ग्रीन कलर में नॉर्मल एक्टिविटी शो हो रही है, रेड में कौन सी शो हो रही है, क्रिटिकल एक्टिविटी शो हो रही है। सो यू कैन रिलेट योर गैंट चार्ट विद द लेजेंड। ठीक है। लेजेंड शो करने के लिए व्हाट यू डू, आप जाते हैं व्यू में जाके आप बार को क्लिक करते हैं और बार में ऑप्शंस में चले जाते हैं। ठीक हो गया। बार में आपके पास एक ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स है। जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑप्शन आ जाता है शो लेजेंड का। लेजेंड का एक स्पेसिफिक ऑप्शन आता है। जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो आपका लेजेंड जो है वो शो हो जाएगा। और आपका लेजेंड कैसा होगा, ये देखिए इस तरह लेजेंड होगा। आपको दिखा रहा है कि रिमेनिंग लेवल ऑफ एफर्ट जो है वो इस तरह से, एक्चुअल लेवल ऑफ एफर्ट इस तरह से, एक्चुअल वर्क की इस तरह से दिखाऊंगा, रिमेनिंग वर्क इस तरह से दिखाऊंगा, क्रिटिकल रिमेनिंग वर्क इस तरह से दिखाऊंगा, माइलस्टोन्स, फिनिश, सब सारी एक्टिविटीज़ को उसने आपको डिटेल्स बता दी। ठीक हो गया। नाउ इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा अप्लाई करके देख लेते हैं। जितनी चीज़ें हमने पढ़ी अभी तक उनको अप्लाई करके देखते हैं एंड देन हम आगे चलते हैं। ठीक हो गया। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने देखा कि हम लोग अगर डेट फॉर्मेट, अभी अगर आप देखिए तो आपके पास डेट फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखिए, अगर हम फाइल में जाएं और एडिट में जाएं और एडिट में यूज़र प्रेफरेंसेस को क्लिक करें, एडिट में यूज़र प्रेफरेंसेस जब क्लिक करते हैं हम, तो स्टूडेंट्स हमारे पास डेट्स का एक फॉर्मेट, एक टैब है। डेट्स के टैब में ये देखिए हम कहते हैं यार कि मुझे डे मंथ ईयर ही चाहिए। ठीक है। जो टाइम है वो मुझे अभी नहीं दिखाओ और मुझे 4 डिजिट ईयर ना दिखाओ। ठीक है। मंथ का नाम ना दिखाओ, मुझे मंथ भी डिजिट में चाहिए। लीडिंग ज़ीरोज़ भी ना दिखाओ, ये मेरी स्पेस वेस्ट करेगा। और सेपरेटर ये वाला दिखाओ। ठीक है। नाउ ये देखिए, आप ऑलरेडी देख लीजिए कि आपको किस तरह से टाइम नज़र आ रहा है। और जैसे ही मैं इसको करके क्लोज करता हूँ, अब आप देखिए कि मुझे किस तरह से नज़र आ रहा है। क्या आप देख सक रहे हैं कि अब मेरे पास किस तरह से आ रहा है। इट हैज़ चेंज ऑल टुगेदर। अब मैं अगर इसको स्क्वीज़ करना चाहूँ, देखिए अब मैं अब कितनी कम स्पेस में ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। ठीक है। अब मुझे ये चीज़ काफ़ी कम स्पेस में नज़र आ रही है। डेट्स भी मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। ये देखिए हर चीज़ अब मेरे सामने आ गई। पहले इतनी बड़ी बड़ी डेट्स थी, प्रॉपर नज़र भी नहीं आ रही थी, अभी सब कुछ नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू फॉर्मेट डेट। एंड देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग
बार का स्टाइल चेंज कर दें। सो हम लोग क्या करते हैं कि व्यू में जाके बार्स को क्लिक कर देते हैं। ठीक है, बार्स हमारे पास आ गई। हमने सपोज हमने कहा कि रिमेनिंग वर्क का जो बार है हमारे पास क्रिटिकल में, ये बार, इस बार की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, बार शेप शुरू में कौन सी लगानी है, बार कैसी होनी चाहिए, एंड पे क्या लगाना है। ठीक हो गया। कलर क्या होना चाहिए, पैटर्न हम इसको दे देते हैं ये वाला, या हम दे देते हैं इसको, लेट्स सी हमें कोई अच्छा सा पैटर्न अगर मिलता है तो हम वो पैटर्न दे देते हैं इसको। ये देखिए, हम ये पैटर्न दे देते हैं। बहुत डार्क रेड हमें पसंद नहीं है, हम इसे कहते हैं यार कि मुझे ये पैटर्न दिखा दो। ठीक है, ताकि हमारा प्रॉपरली हमें इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाए। सो जैसे ही मैंने इसको किया, उसको अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ, तो अब आप देखिए कि मेरी बार्स थोड़ी चेंज हो गई हैं। आई डोंट नो आपको ये विजिबल है कि नहीं। मैं आप थोड़ी सी फॉर्मेटिंग डिफरेंट करूँ तो शायद ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से विजिबल हो। ये देखिए, मैं जब इस पे आया, इस बार पे, तो मैंने क्या किया, चले मैं इसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से कर देता हूँ और उसके स्टार्ट पे भी दो लगा देता हूँ एरोज़, और इन दोनों एरोज़ का कलर भी ब्लैक रख देता हूँ। ठीक हो गया। सो दैट कि मुझे, ये देखिए, अब अगर आप देखें तो मैंने क्रिटिकल टास्क को कैसे कर दिया। अब मेरी जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं मुझे बिल्कुल डिफरेंट शो हो रही हैं, बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में शो हो रही है। ठीक हो गया ना। उसको मैं रिवर्ट बैक भी कर देता हूँ, सो दैट कि हम अपने डिफ़ॉल्ट उसमें रहें। ठीक है, इसको मैं डिफ़ॉल्ट पे कर देता हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई शेप नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे कोई शेप नहीं चाहिए, और इसका जो कलर है वो कलर कर देता हूँ मैं रेड है, और पैटर्न इसका सॉलिड कर देता हूँ। ठीक हो गया। अप्लाई। अब देखिए तो मेरी बार जो है वो सारी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग जो हम देखते हैं कि हमने करनी है वो ये है कि हम बार के जो लेबल्स हैं, बार के साथ जो टेक्स्ट आ रहा है वो टेक्स्ट शो करना है हमने, वो कैसे शो करेंगे। ये देखिए, पोजीशन सेलेक्ट करता हूँ मैंने, यहाँ से सपोज करें ये सिलेक्ट कर दिया, एक पोजीशन ऐड करता हूँ। ठीक है, मैं ये ऐड का बटन आ रहा था, जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो उसने पूछेगा कौन सी पोजीशन, मैंने कहा यार टूवर्ड योर राइट। ठीक है, मुझे राइट साइड पे क्या दिखाओ, मैं कहता हूँ मुझे स्टार्ट डेट दिखा दो। ठीक हो गया, स्टार्ट। एंड देन मैं एक और ऐड करता हूँ कि मुझे उसके जो लेफ्ट है उस पर फिनिश दिखा दो। एंड देन मैं एक ऐड करता हूँ कि इसका जो सेंटर है उसमें मुझे एक्टिविटी नेम दिखा दो। ठीक हो गया। ये तीन चीज़ें मैंने इसके स्टार्ट में स्टार्ट डेट, राइट लेफ्ट साइड पे स्टार्ट डेट, ठीक है, टूवर्ड योर लेफ्ट फिनिश, यहाँ पे हमारा होना चाहिए स्टार्ट, यहाँ पे होना चाहिए फिनिश। ये टूवर्ड मैंने जो हमारा जो राइट है उस पर फिनिश दिखा दिया, लेफ्ट पे स्टार्ट दिखा दिया, और मिड में मैंने दिखा दिया एक्टिविटी नेम। और जैसे ही मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके, अब आप देखिए अब किस तरह से नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, अब मुझे मेरे इसके अंदर टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे साइड डेट्स नज़र आ रही हैं। इस चीज़ को अगर मैं रिवर्ट करना चाहूँ तो मैं बार लेवल्स में जाके जो क्रिटिकल बार है इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अप्लाई करूँगा तो ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। देखिए अब ये अप्लाई हो चुका है। नाउ स्टूडेंट, जो इसके बाद जो चीज़ हमने कही थी कि हमें ये सारी बार्स का यहाँ लेजेंड भी चाहिए कोई, ताकि हमें नज़र आ रहा हो कि हम देख क्या रहे हैं। उसके लिए हम व्यू में जाएंगे और बार्स को क्लिक करेंगे। व्यू में जैसे ही हमने बार्स क्लिक किया, बार्स को क्लिक करते साथ हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, व्यू में जैसे ही मैं बार्स में गया तो मेरे पास देखिए यहाँ पे एक ऑप्शंस का बटन आ रहा है। ये इस जगह पे अगर आप गौर कीजिए तो मैं ऑप्शंस का बटन आ रहा है। मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ
तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स अगर आप देखिए गौर से तो इसमें शो लेजेंड का एक ऑप्शन है। मैं इसको चेक करता हूँ, ओके, अप्लाई, ओके। ये देखिए मुझे यहाँ पे एक लेजेंड नज़र आ रहा है। आई कैन मूव इट टू एनी प्लेस, बट ये लेजेंड में नज़र आ रहा है। नाउ जब मैं अपने बॉस को दिखाऊंगा तो मेरा बॉस बड़े आराम से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता है यार कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, जो क्रिटिकल नहीं है वो कौन सी हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ कहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो यहाँ ये चीज़ जो है आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। स्टूडेंट्स, लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट फीचर विच वी हैव गॉट, दैट इज़ कि हमारे पास जो आप देखिए जो बॉटम लेआउट था जहाँ पे हमने सक्सेसर और प्रीडिसेसर और रिलेशनशिप के टैब्स देखे, क्या इसमें जो टैब्स नज़र आ रहे हैं ये मॉडिफाइबल हैं? क्या इसमें से कोई टैब को हटा सकते हैं, कुछ टैब्स को दिखा सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? इस चीज़ को देखने के लिए हम ये देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है इट इज़ व्यू। आप व्यू में जाएंगे, बॉटम लेआउट ऑप्शन में चले जाएंगे। ठीक है, व्यू बॉटम लेआउट ऑप्शंस। बॉटम लेआउट ऑप्शंस में अवेलेबल टैब्स सारी यहाँ पे हैं और जो आप देख रहे हैं टैब्स वो यहाँ पे हैं। ठीक हो गया। जिस तरह से अभी हमने देखा कि हमें रिलेशनशिप का टैब तो नजर आ रहा था लेकिन हमें प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर नजर नहीं आ रहा था। सो अगर मैं प्रीडिसेसर देखना चाहूँ तो मैं जस्ट इसको क्लिक करूंगा तो मेरा प्रीडिसेसर इट विल मूव टूवर्ड राइट साइड मूव कर जाएगा और इस टैब को भी मैं देख सकूंगा। सो ये जो नीचे टैब्स आ रहे हैं दे आर कस्टमाइजेबल कि आप जिस टैब को देखना चाहें उसको इधर से इधर मूव कर दें, जिसको ना देखना चाहें उसको इधर से इधर मूव कर दें। ठीक है, अगर सारे नहीं देखना चाहते तो सारे इधर से इधर मूव कर दें, अगर सारे देखना चाहते हैं सारे इधर से इधर मूव कर दें। आपके पास ऑप्शंस हैं और जैसे ही आप कर चुके हैं देन क्लिक अप्लाई एंड ओके। अप्लाई कीजिए एंड ओके कर दीजिए। ठीक हो गया। सो जब आप ये चीज़ कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि आपके टैब्स कस्टमाइज हो जाते हैं। ठीक हो गया। सो हम लोग सॉफ्टवेयर पे चीज़ करके देख लेते हैं कि किस तरह से कस्टमाइज होते हैं। ये देखिए नीचे टैब्स आ रहे हैं, जनरल आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, रिसोर्स, कोड्स, रिलेशनशिप, लेकिन प्रीडिसेसर का और सक्सेसर का कोई टैब नहीं आ रहा। सो मैं क्या करता हूँ, व्यू में जाता हूँ और बॉटम लेआउट ऑप्शंस पे चला जाता हूँ। ये देखिए वो प्रीडिसेसर तो यहाँ पड़ा हुआ है, देखना है ओके देख लेते हैं। इतना एंड पे नहीं देखना, जनरल के बाद दिखा दो। ये देखिए ऊपर मूव करता जा रहा है, जनरल के बाद दिखा दो, अप्लाई करो ओके। अब आप देखिए जनरल के बाद मेरे पास एक टैब है प्रीडिसेसर का भी सेपरेट टैब है। सो आई कैन यूज इट, इसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सो इस तरह से बॉटम लेआउट के जो ऑप्शंस हैं वो वेरी करते हैं और वो आप चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही है। लेट्स रिवाइज कि हमने आज क्या क्या पढ़ा और क्या क्या देखा, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह से जो है हम रिलेशनशिप्स लगाते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप लगाने में हमने देखा कि प्रीडिसेसर कैसे चेंज किया जाता है, सक्सेसर कैसे चेंज किया जाता है, मल्टीपल प्रीडिसेसर कैसे रखते हैं, ये चीज़ की। और हमने एक्टिविटीज़ को इंसर्ट कैसे करना है दो एक्टिविटीज़ के बीच, इसको हमने देखा। हमने डिस्कस किया कि एक्टिविटी आईडीज़ जो हैं उन पे 10-10 का गैप होता है। तो अगर आप कोई एक्टिविटी इंसर्ट करना चाहते हैं दो एक्टिविटीज़ के बीच पे तो आपको दो काम करने हैं। एक नई एक्टिविटी क्रिएट करें, एक्टिविटी आईडी उन दो एक्टिविटीज़ के बिटवीन का होना चाहिए, एंड तीसरी चीज़ ये कि रिलेशनशिप मॉडिफाई करें कि रिलेशनशिप जो आपने लगाए हुए हैं उनमें जो चेंज आ रही है वो चेंज आप वहाँ दिखा दें। 3 काम आप करेंगे तो आपकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो चीज़ स्टूडेंट्स हमने देखी दैट वाज कि हम लोग स्लैक कैसे देख सकते हैं या फ्री फ्लोट कैसे देख सकते हैं, इसका पर्पज़ क्या है और उसको कैसे देखना है। हम लोगों ने ये कहा कि हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे फ्री फ्लोट का, और जब वो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा उस कॉलम में हम लोग देख सकेंगे कि जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनका फ्री फ्लोट 0 है और जो क्रिटिकल नहीं है उनका फ्री फ्लोट की कोई वैल्यू है। स्टूडेंट्स, वंस डन विद दिस थिंग वी मूव टू कस्टमाइजेशन
फॉर्मेटिंग। हमने कहा यार कि अब हम थोड़ी सी इजी टॉपिक देखते हैं, थोड़े कलरफुल टॉपिक्स देखते हैं, और हम लोगों ने फॉर्मेटिंग और हम लोग कस्टमाइजेशन की तरफ आ गए। फॉर्मेटिंग में जो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहली चीज़ देखी वो थी डेट फॉर्मेटिंग, और हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया कि हम डेट को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, किस तरह से लीडिंग जीरोस खत्म करने हैं, किस तरह से ईयर का स्टाइल चेंज करना है, किस तरह से टाइम का स्टाइल चेंज करना है, किस तरह से सेपरेटर्स लगाने हैं, सारा हमने करके देखा। आफ्टर दैट जो चीज़ हमने स्टूडेंट्स देखी वो ये थी कि जो बार स्टाइल है उसका कलर, उसके स्टार्टिंग एंडिंग और उसकी जो शेडिंग है वो कैसे चेंज होगी। फॉलोड बाय दैट जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखी दैट वाज कि हमारा जो बार्स थी उनके साथ जो लेबल्स आ रहे हैं उनके स्टार्ट पे, एंड पे, लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे, बॉटम पे, मिड में कैसी चीज़ें दिखा सकते हैं हम। हमने कहा कि हम बार्स में जाएंगे और जाके बार लेबल्स में ऐड करेंगे जो जो लेबल हमने दिखाने हैं। ठीक हो गया। वंस डन विद दिस थिंग देन द थिंग विच वी डिस्कस्ड वाज द लेजेंड। हमने कहा कि हम लेजेंड कैसे ऐड कर सकते हैं, और हमने लेजेंड ऐड करना देखा कि हम लोग बार में गए, व्यू में बार में जाके ऑप्शंस को क्लिक किया हमने, और हमारे पास एक चेक बॉक्स था कि लेजेंड दिखाओ या ना दिखाओ। हमने कहा लेजेंड दिखाओ, और हमने देखा कि लेजेंड किस तरह से आप उसको मूव भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट जो चीज़ हमने डिस्कस की दैट वाज टैब्स, कि कौन कौन से टैब्स जो हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, कौन से टैब्स आप रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम योर बॉटम लेआउट, और वो किस तरह से किया जाएगा। स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए, और ये याद रखिए कि सॉफ्टवेयर जो है वो खुद से कोई काम नहीं करेगा, माइंड आपका होगा, सॉफ्टवेयर आपको ईज अप करेगा, सॉफ्टवेयर आपको कंट्रोल प्रोवाइड करेगा, बट अल्टीमेटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज है, वो आपको अपना यूज़ करना पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।